Good morning, children. Today we will be doing your unit number 11, nouns, number, from your grammar book. Children, it's a very simple topic to understand and हम ये unknowingly पहले यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी और हम डेली लाइफ में भी करते हैं. ऑलराइट, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं पता होता कि वो रूल्स क्या हैं. Unknowingly we do follow them, but we don't know exactly what the rules are. Let's start with the chapter now. Confusion, confusion. There's a funny poem given here. We will read it out and... Okay, confusion, confusion. I don't know what the rules of English grammar. It makes me confused. It sucks my power. Let's start with the box. Its plural is boxes. Then why isn't the plural of ox is oxes? The plural of man is always called men. Then shouldn't the plural of pan be called pen? You may find a lone mouse or a nest full of mice, but the plural of house is still not hice. If one is tooth and the whole set is teeth, why shouldn't the plural of booth be called beeth? So plurals in English, I think you will agree, are indeed very confusing and very, very tricky. Okay, so क्या है इस पोयम में चिल्ड्रन? आप लोग सोचते होंगे कि अगर बॉक्स बॉक्सेस है तो ऑक्स ऑक्सेस क्यों नहीं होता. मैन अगर मैन है तो पैन पेन क्यों नहीं होता. माउस है तो माइस क्यों होता है. हाउस है तो हाइस क्यों नहीं होता है. टूथ है जो कि टीथ बोलते हैं तो बूथ बीथ क्यों नहीं होता है. करेक्ट. सो वी हैव टू फॉलो अ फ्यू रूल्स वाइल वी make nouns into their plurals, singular nouns into their plurals. Alright, let's see the next page. What have they given? It is just for fun. This poem is just for fun and it is not correct. Don't go through it. इसमें अगर लिखा है कि ox and oxes, don't go through it. It is not like that. These are wrong. Okay, so you have to read this carefully. It is just for fun. Just ignore this one. Let's go to the next page. There are few rules in English grammar to form plurals. अगर कोई चीज़ singular है उसका plural बनाने के लिए हमको कुछ rules follow करने पड़ते हैं. There are so many rules. There are 7 rules here given in this book and we will read them and then we will see how do we make singular into plurals. First rule is to add s. Normal, काफ़ी सारे वर्ड्स में सिर्फ सिंगल एस को हम सफिक्स लगा देते हैं यानी कि वर्ड के बाद लगा देते हैं और वो प्लूरल बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल एरोज, बर्ड्स, केक, ईयर, फ्लावर, गर्ल्स, हॉर्सेस, काइट्स, लायन, लायंस, शिप, शिप्स, ऑरेंज, ऑरेंजेस, वर्ड, वर्ड्स. ओके, दीज आर नॉर्मल. आपने सिर्फ एस लगाया उसके लास्ट में, सफिक्स किया उसको यानी कि वर्ड के उसको बाद लगाया एस को और वो हमारा प्लूरल बन गया सिंगुलर से. ओके, नेक्स्ट रूल इज टू ऐड ई एस. ओके, और लेट्स सी हियर. नाउन विच एंड विद एस, डबल एस, एस एच और सी एच एंड एक्स. जो वर्ड्स इन लेटर्स से एंड करते हैं उनके लास्ट में हम ई एस लगाते हैं टू मेक देयर प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल बस, बसेस, बंच, बंचेस, चर्च, चर्चेस, बॉक्स, बॉक्सेस, डिश, डिशेस, विश, विशेस, क्लास. सी एस एच आ गया एंड डबल एस आ गया एंड एक्स आ गया. ठीक है, सी एच आ गया. Alright children, so that how the rule goes. Third one, the most nouns that end in consonant O needs es of the plural to the plural forms. क्या मतलब हुआ? जो कॉन्सोनेंट ओ में एंड करते हैं उनको ई एस चाहिए होता है. ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था? एस, एस एच, एस एस,
CH and X. ठीक है, all these words are similar, sounds are similar, S, SS, SH, CH and X. ऑलराइट, इन सब में ES लगाएंगे हम लास्ट में टू मेक देयर प्लूरल फॉर्म्स. नेक्स्ट, जो O से एंड करते हैं उसमें हम ES लगाएंगे. ठीक है, हीरो, हीरोज, बफलो, बफलोज, मस्कीटो, मस्कीटोज. ऑलराइट, ज़ीरो, ज़ीरोज, मैंगो, मैंगोज, टमेटो, टमेटोज. ठीक है, दिस इज द थर्ड रूल. As we have just talked about confusion, there are some exceptions to this rule. For example, photo, photos, piano, pianos. ठीक है, these are exceptions to this rule. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि O जिसमें होगा लास्ट में कॉन्सोनेंट O जिसमें होगा उसमें हम लास्ट में ES लगाएंगे. ठीक है, बट फोटो में एंड पियानो में एक्सेप्शन है, यानी कि रूल फॉलो नहीं होता इन दो वर्ड्स के लिए. फोटो में फोटोज सिर्फ एस ही लगेगा एंड पियानो में सिर्फ एस ही लगेगा टू मेक इट्स प्लूरल. ऑलराइट चिल्ड्रन, नेक्स्ट रूल. इन दिस रूल जो F में एंड होता है या FE में एंड होता है उसका हम F हटा के और FE हटा के VES लगाते हैं. ये हम सबको पता है. ऑलराइट, calf, calves, loaf, loaves and so on and so forth. यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स हैं. यू हैव टू रीड ऑल ऑफ देम, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम, सेल्फ स्टडी भी करना है चिल्ड्रन. ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. फिफ्थ रूल, कॉन्सोनेंट प्लस वाई. चिल्ड्रन हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वावल्स क्या होते हैं. AEIOU हमारे वावल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ऑल द अदर लेटर्स एक्सेप्ट AEIOU आर कॉन्सोनेंट्स. ओके, सो जो वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है प्लस वाई आता है, वहाँ से हम वाई को रिमूव करके IES लगाते हैं. ओके, लेट्स सी दिस वन. दीज आर इम्पॉर्टेंट वंस. इससे पहले जो थे चिल्ड्रन वो सिंपल थे, easy थे, and these three are very important. You have to remember all of these. AEIOU को हटा के जो भी लेटर हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहेंगे, इनको हम वावल्स कहेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी. ICITY, TY आया तो हमने उसको हटा के वाई को हटा के IES लगा दिया. सिटीज़ हो गया, लेडी, लेडीज़. सो यू हैव टू रिमेंबर AEIOU के अलावा जो भी लेटर और वाई आएगा किसी वर्ड के एंड में तो आप उसे हटा के वाई को हटा के IES लगा देंगे. एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. फैमिली में वाई हटाया, IES लगा दिया. डेयरी में वाई हटाया, IES लगा दिया. स्टोरी में हटाया, IES लगाया. ठीक है, नाउ चिल्ड्रन प्लीज लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अभी हमने क्या पढ़ा, कॉन्सोनेंट प्लस वाई. अभी हम पढ़ेंगे वावल प्लस वाई, यानी कि AEIOU प्लस वाई. सी, AY, OY, EY, EY, EY एंड EY. ठीक है, अब चिल्ड्रन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मतलब प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टोरी एंड स्टोरी. दिस वन मीन्स कहानी, दिस वन मीन्स मंजिल. जो होता है ना कि दिस बिल्डिंग हैव 10 स्टोरीज, तो ये STOREY हमारा मंजिल वाला स्टोरी होगा. ठीक है, जिसका प्लूरल सी EY आया है, यानी कि वावल प्लस वाई आया है, तो हम इसमें सिर्फ S लगाएंगे लास्ट में. लेकिन इस वाले स्टोरी में, कहानी वाले स्टोरी में कॉन्सोनेंट प्लस वाई आया है, RY आया है, तो हम वाई को हटा के IES लगाएंगे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप कॉन्सोनेंट और वावल से डील कर रहे हैं. यानी कि ऑल द लेटर्स यू हैव टू सी द लेटर फर्स्ट कि वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है या फिर वावल है. अगर कॉन्सोनेंट है तो आप इस वाई को हटा के IES लगाएंगे, और अगर वावल है तो आप उसके आगे सिर्फ S लगाएंगे. ठीक है,
So these two rules are very important. Let's go to the last rule. लास्ट रूल बेसिकली रूल नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ड्स के लिए कोई रूल्स फॉलो नहीं होते. दे आर having a spelling change. For example, ox, oxen, man, men, women, woman, louse and lease. यानी कि louse और lease क्या है, जो बालों में वो हो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, जुए हो जाते हैं, उनको हम लाउस बोलते हैं सिंगल को, और प्लूरल को हम लीज बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, और नेक्स्ट है माउस, यानी कि वन माउस को हम माउस बोलेंगे, और वन से ज़्यादा को, मल्टीपल को, प्लूरल को हम माइस बोलेंगे. वन टूथ, वन इज टूथ, एंड ऑल ऑफ देम आर टीथ, यानी कि वन से ज़्यादा टीथ हो गए. ऑलराइट, सो दैट इज़ इट अबाउट प्लूरल्स चिल्ड्रन. इतने ही रूल्स हैं. यू हैव टू फॉलो all of these rules to make singulars into plurals. Let's see the exercise now, and this is your homework children. 5 exercises हैं. These are very simple. We have been doing this. आप इस सब को as homework करेंगे. First one, write the plurals of these words. ray, rays. हमने क्या पढ़ा था कि अगर consonant होगा, vowel होगा, उसके बाद y होगा, तो हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे. तो रे में देखो क्या है, ए वाई है, और हमें यहाँ पे सिर्फ एस लगाना है. ठीक है, RAYS. ओके, लेट्स सी माइस. इसका सिंगुलर बनाना है. फर्स्ट वन में क्या था, प्लूरल बनाना है, इसमें सिंगुलर बनाना है. क्या पढ़ा था हमने माइस का, माउस. ठीक है. थर्ड वन, फिफ्थ वाला करती हूँ. डैश प्रिपेयर्ड इनोवेटिव मॉडल्स. हु प्रिपेयर्ड, आपको करेक्ट चूज करना है. चाइल्ड्स और चिल्ड्रन. चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है. चाइल्ड अगर हम यहाँ से एस हटा देते हैं तो ये सिंगुलर है. चिल्ड्रन, चाइल्ड इज एक बच्चा. चिल्ड्रन इज मल्टीपल बच्चे, मैनी चिल्ड्रन. Okay, so it will not be childs, it will be children. Children prepared innovative models. Last one करती हूँ. Where is your scarf? ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे is लगाया है, is सिंगुलर होता है. अगर यहाँ पे are होता तो हम यहाँ पे प्लूरल लगाते हैं. Where are your scarves? Okay, so you have to be very careful while writing singular और plural. You have to see कि क्या helping verb यूज़ किया है, क्या verb यूज़ किया है, क्या वो plurals के लिए यूज़ होता है या वो singular के लिए यूज़ होता है. Okay children, let's see the fourth one. Fill in the blanks with plurals of the given words. यहाँ पे आपको जो given words हैं, यानी कि bracket में जो words हैं, उसके plural form भरना है blank में. ठीक है. Some women, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ए हटा के ई आता है women में. सो हमारा हो जाएगा WOMEN. Some women love ornament. Now see, this is the simplest form, जिसमें हमें सिर्फ एस लगाना होता है. ठीक है, क्योंकि ना तो यहाँ पे वावल प्लस वाई है, ना तो यहाँ पे ऑर्नामेंट में. सी दिस वन स्पेलिंग, ORNAMENT. ऑर्नामेंट का मतलब होता है हीरे जवाहरात. ठीक है, ज्वेलरी. अब यहाँ पे NT है. ओके, तो ना तो यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, ना ही हमारा वावल प्लस वाई है. ओके, सो हम यहाँ पे एस लगाएंगे. ऑर्नामेंट्स, लाइक दिस, एंड दिस विल बिकम अ प्लूरल नाउ. आई विल डू वन मोर फॉर यू चिल्ड्रन. Sixth one I am doing. Please wash your hands and feet. Foot का क्या होता है, feet. This is change of spelling. Double O changes into double E in feet. Now children, English is a very different kind of a language. यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद करनी ही पड़ेगी.
हम उसको रूल के हिसाब से नहीं कर सकते. ओके, सो विच एवर इज एक्सेप्शन यू हैव टू लर्न इट. I want all of you to do all the exercises and send it to me so that I can check it and tell you what your gray areas are. आपको कहाँ पे problem है. Okay, so this is for today, children. Please do your homework and send it to me, and any problems you can please ask me. Thank you so much, children.